today we are here to discuss a very specific topic, which is of GTO, right? Now, over the years, I have seen people commit a lot of, there is a set of mistakes that they do, ठीक है? उसके बाहर जाते नहीं है usually, fine. Now, when you go to the SSB, that particular mistake might be decoded as something along the lines of factor 1, factor 2, ये वो फलाना ढिमकाना. That is not important for me, right? What I see is a lack of practice, right? And a lack of clarity of a clear cut mindset, right? So that is what we're going to discuss in today's session. So while going to the SSB, or and specifically when we talk about the GTO, what mindset should you have? ठीक है. तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज करूं, नंबर 1, कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन, right? The thing is that the moment people reach the SSB center, they have a perspective that it is a competition to get selected. ठीक है, मेरी बात समझो. It is a competition, yes, but what you have to keep in mind that it is a test of your personality, right? So competition, when it goes into the extreme, it results in jealousy or feeling of insecurity, ठीक है, or a feeling of being incomplete, being not being good enough, ठीक है. So I hope you understand that competition has to be in moderation, ठीक है. Cooperation on a similar manner, too much cooperation also is lethal, right? Because then you become the carpet, the doormat, and everyone just walks all over you, right? So एक्सट्रीम में नहीं जाना. एसएसबी का एक मंत्र है, याद रखना, ठीक है. In 90% of the cases, middle path is the best one. Fine. Okay. So competition versus cooperation. So people, you have to get out of this mindset that when you, now let's apply this specifically when we talk about GTO. 10 बंदे आपके ग्रुप में टोटल, यू आर 10 people, right? Now when the GD starts, it is the first task, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन. मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी पर्सनली, because I'm someone who has worked on his public speaking skills over the years, right? I was not that much confident over my public speaking, ठीक है, but one thing I was confident of was my teamwork, fine. So my strategy was never to initiate. Why? Because I know there is a lot of competition, unnecessary competition, and people get jumpy. Now, due to this reason, when they are presented with 3 leads, they make hasty choices, which they regret later. And my friends, when you go to the SSB, regret, remorse, guilt, depression, these are some feelings which you want to get rid of, which you don't want to have. Trust me on this, right? What you want to have is acceptance. ठीक है, accept करो जैसा है group, right? So question is, what's the point here? देखो यार, फौज में ना वो बंदा चाहिए जो कि, सी, जीटीओ का बेसिक टेस्टिंग मेथडोलॉजी क्या है? ही विल गिव यू अ टास्क, अ गोल, फाइन. ही विल गिव यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, and then he takes a passive role, right? He lets the entire group of 10 arrange themselves according to their power dynamics, fine. Now what is the perspective that he has? Now these are the initial 4 are leaderless tasks, पहले 4 जो होते हैं, ठीक है, जीडी, जीपी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है. हाफ ग्रुप टास्क उतना, सॉरी माय बैड, नॉट हाफ ग्रुप टास्क, इट्स ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, राइट? सो जीडी, जीपी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, दीज आर लीडरलेस टास्क, ठीक है. तो किसी बंदे की अगर लीडरशिप टेंडेंसीज हैं तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली इन्हीं 4 में आएंगी, फाइन. In other places, he will look to be
he will look towards becoming an appointed leader. ठीक है, और कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, that leads to frustration, right? So displaying frustration is a question on your, अभी recently आपने वीडियो देखा होगा, it is a question on your factor 3, which is self confidence. Do not show visible signs of frustration, be patient. ठीक है, it is also a question mark on your factor 2, which is social adjustment. And my friend, social adjustment is a big question mark. ठीक है, क्योंकि फौज में फोर्स कम्युनिटी लिविंग होता है. ठीक है, it doesn't matter who you are, where you come from, where you want to go, but if you're in Fauj, while you're in Fauj, you have to live with the community. You have to adjust to the community. You don't get to choose your neighbors. You don't get to choose your colleagues. You understand? You have to adjust. Fair enough. ये बड़ा गेम है. ये मेरे को ना 4th year में समझ में आया था. When I read this particular book, I mean 4th year of my college, right? So when I read this particular book, it's called How to Win Friends and Influence People, right? So if you want to get a good grip over GTO, please do read. And read it multiple times, my friends, right? There are topics such as, मैंने अपने road to recommendation वाले channel पे upload भी कर रखा है. There is a summary along with the PDF. Fine, so you guys can go ahead with it. Otherwise, nothing better than a hard copy, fine, which you can read again and again. Anyway, so let's understand the, because देखो यार, GTO का आपको mindset समझ में आया, how to win friends and influence people, fine. देखो, if you understand the mindset of the GTO, then you will have successfully decoded what not to do. Correct? And if you know what not to do, then you have a plethora of options in what to do. ठीक है, चलो तो हम धीरे से जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं. So one of the biggest mistakes that people commit when they go to the plethora is wide range of options. ठीक है, multitude of options, fine. It is plethora with a PLE, right? Anyway, so point is that when everyone goes to the SSB, fine. So देखो यार, instructors जो होते हैं ना, they are trained by DIPR all एक साथ. ठीक है, तो जो उनको ओपनिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, वो DIPR से कॉमन रहते हैं. ठीक है, बट everyone modifies the instructions accordingly, according to what irritates them the most after seeing so many candidates. ठीक है, तो जो बंदा इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, उसको असेसर स्पेसिफिक बातें पता चल जाएंगी, what the assessor is looking for. ठीक है, this has happened recently with a lot of recommended candidates, a lot of students who have gotten recommended, fine. So the instructions are the key to assessor's mind, fine. तो जनरल चीज़ें तो याद रखनी है. ठीक है, देखो होता क्या है कोचिंग में, एक आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो आई वाज फॉर अ पीरियड इन माय लाइफ आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. ठीक है, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू वर्क एट अपवर्क. उस टाइम पे ईलैंस हुआ करता था. ठीक है, उसमें क्या होता है ना, बिड्स होती हैं. ठीक है, सो whosoever is posting the job, they will post the job. ठीक है, those who want to work will bid for it. ओके, सो जो बंदा पोस्ट करेगा जॉब ना, उस वो डिस्क्रिप्शन लिखता है. अब कुछ बंदे क्या करते थे, जैसे पबजी में हैकर्स होते हैं ना, वैसे कुछ बंदे क्या करते हैं, सारी जॉब्स पे अप्लाई कर देंगे बिना पढ़े. ठीक है, अब इस चीज़ से बचने के लिए ये क्या करने लग गए, जॉब पोस्ट जो करते हैं, उन्होंने क्या बोला ना, देखो लंबा सा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, एंड में क्या करा ना, एंड में एक लाइन जोड़ दी, इफ़ यू हैव रेड अप अंटिल दिस पॉइंट स्टार्ट ऑफ विद द टैगलाइन हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, अब जितने 200 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से जिसने हैप्पी न्यू ईयर से ओपन करा है लेटर को, अब भाई मेरा तो काम आसान हो गया ना, 4-5-10 बंदे जितने भी हैं, ठीक है, अब उनका प्रपोजल मैं कंसिडर करूंगा. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. instructions prove as a similar checkpoint to avoid spamming, because a lot of candidates come there coached,
ठीक है. So it instructions, they filter out the coach candidates, they help in filtering out, at least it is a small part, right? Okay, instructions है हमें समझ में आया. अच्छा, next, like I said, the first 4 tasks they are leaderless task, right? And एक और principle अगर हम समझे SSB का, which is, it says that any person who has worked hard in the past is likely to work hard in the future. ठीक है. Any person who has been responsible in the past is likely to be more responsible in the future. ठीक है. Any person who has made his own decisions in the past is likely to make his own decisions in the future. So similarly, any person who is used to leading or be solving problems at the forefront in the past is also likely to continue doing the same in the future. ठीक है. तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, जब लीडरलेस टास्क, देखो 2 टाइप के बंदे होते हैं. ठीक है. एक ऐसे होते हैं कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, हमें सोल्यूशन अपने चाहिए लाइफ में. ठीक है. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फाइन. दूसरे एक टाइप के बंदे होते हैं. रिसेंटली आई वाज गोइंग अराउंड अबाउट इन आई लिव इन एन एयरफोर्स कैंपस, राइट? सो इधर एक बंदा था, अब वो ग्रुप डी में काम करता है. ठीक है. साफ सफाई करता है बंदा. ठीक है. तो अपने इंचार्ज से कुछ पता नहीं किस बात पे कुछ बोल रहा था, कुछ बात हो रही थी इनकी, एंड ही गेव अ रिमार्क. कहता है अरे सर आप ही बता दो ना, इतना दिमाग हम में होता तो ये काम थोड़ी कर रहे होते. यू गेट माई पॉइंट. सो द पीपल हु फॉल बिहाइंड, दे सिट देयर फॉर समवन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दे जस्ट वांट टू फॉलो. ठीक है. तो ये गेम होता है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पीपल हु आर expected or who can lead will naturally fall into place which is at the forefront. They will try to solve the problem proactively. Correct? I know आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है. सर हमारा तो रिपीटर्स का बैच था, हमारे तो सारे लीड करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में क्या होगा? देखो ऐसे में क्या होता है ना, देन द गेम बिकम्स ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है. एनी पर्सन who refuses to cooperate will suffer the consequences. ठीक है. अब let's say for example 3 बंदे आगे पहुंच गए सॉल्व करने कुछ भी. हम typically what we have in mind is PGT. We're talking about PGT in context, है ना, just to put it in context. So 3 people are at the forefront, let's say for example, right? They're solving. One of them is not able to solve. आपने आवाज लगाई, chest number 25 please, if you, I have an idea, I would like to contribute, could you please just exchange places with me? ठीक है. Make sure you're loud enough. नहीं सुना बंदे ने ना, दोबारा बोलो. ठीक है. 3 बार भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. I hope you understand that he is refusing to cooperate. That gets highlighted, and this has happened with someone in the past. ठीक है. Recently, I mean, last year की बात है, there is a student, Sham, went to the SSB and उसके साथ सेम चीज हुई, right? I hope you understand that you want to lead from the front, you also want to cooperate. Fine. Recently one example of cooperation that one of my students said was that he said, उसको एक बंदे ने बोला कि आजा भाई पीछे, तो कहता भाई एक लास्ट कोशिश करने दे, नहीं हुआ तो मैं आ रहा हूँ. ठीक है. So that is something which is acceptable. Now the question is why? Because my friends, अगर कभी आपने ओथ टेकिंग सेरेमनी ध्यान से सुनी है तो उसमें क्या बोलता है? Can anyone tell me what is the oath taking ceremony? What major parts are there? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल बड़े अच्छे से पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, है ना, बट क्या हमने कभी ओथ पे ध्यान दिया है? These should be the driving principles that you guys adhere to. Can I say the oath? बता देख के नहीं पढ़ना. मेरे को वो बता
एसेंस बता, देखना नहीं है उधर उधर, कहाँ देख रहे? ये आदमी को रोज बोलता हूँ मैं, ये हाँ भोला देख रहा हूँ शक्ल से सर, लगता है हाँ बस देख ये। रहा हूँ। हाँ बता। नहीं देख रहा हूँ सर, नहीं देख रहा हूँ। हाँ बता। I, Mahesh Bhola, do swear in the name of God that I will bear faith, ट्रू फेथ एंड true faith एलिजेंस। and alliance to the Constitution of India, ठीक है। as by the law established, and that I will, as in the duty bound, हम्म। honestly and faithfully serve my country सर्व इन द and रेगुलर the आर्मी। army, हाँ। serve in the regular army in the Union of India. इसके आगे नहीं आते। एंड गो। orders where and हम्म। follow wherever we are ordered to go, even to the peril of my life. ओके, एंड गो बाय लैंड सी और एयर टू wherever ordered by the The president President of the Union of of the India. Union of India or any officer set above me, even to the peril Peril of of my life. ठीक है? What is the what is what is it that they're trying to highlight here? There are some key aspects and you have to understand them. ठीक है? First is I swear to uphold the Constitution of India. ठीक है? दूसरा पार्ट है to follow the orders even to the peril of my life. आप समझ रहे हो? अभी तक हमने जो दो चीजें डिस्कस करी है वो यही है। मैंने क्या बोला? इंस्ट्रक्शंस, राइट? सेकंड पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस टाइप का है? Democratic. डेमोक्रेटिक। यस, इट इज नॉट ऑटोक्रेटिक, करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड all the principles of democracy are applicable in, or the general concept of democracy is applicable in the group discussion as well. I hope you understand. Each and every member has equal voice. Fine. And opinion भी उनका equally matter करता है. I hope you understand it's about forming alliance. If you can form an alliance, if you can get a few people to be on your side, then you've essentially gathered a team. Fine. That is what leadership is all about. ठीक है? अब इसके लिए हम एक स्टेप पीछे से जरा डिस्कस करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टेंड टू इग्नोर दिस, राइट? तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, हमारा पहले जीटीओ बैच चलता था, बीच में हमने फिर थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज वी वांटेड टू फोकस ऑन साइक एंड इंटरव्यू मोर, राइट? सो वी हैड टू गेट द इंटरव्यू बैच अप एंड रनिंग. बट जब था तो the advice that I used to give to my students was, first one, which I've already told you, read this particular book, How to Win Friends and Influence People. Second one is, when you go to the SSB, right from the, I mean, before the testing starts, so off testing also, there is team building going on or trust building going on. ठीक है? So मैं क्या करता था? I would try to help out people right from the beginning, right? Because whenever the entire group comes together, so there is a lot of, everyone tries to interact with each other and test the waters. Fine. इसके भी डिटेल में हम एक पर्सपेक्टिव अभी लेके चलेंगे, which is it is the formation of relationship between a leader and a follower. ठीक है? So ये aspect भी हम एक cover करेंगे, but for now let's focus on what we need to do. Fine. तो आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे कर सकते हैं. ठीक है? रेलवे स्टेशन में मिले, एक दूसरे की हेल्प करो, है ना? ऑर्डर मत करो. ठीक है? एक वो आजकल शायद एक मीम वायरल हुआ था, है ना, कि एक बंदे ने बोला कि भाई साहब इतने अटेम्प्ट दिए हैं, सिलेक्ट तो आज तक नहीं हुआ, पर मुझे कम से कम ये पता है कि वहाँ पे जाके कम से ये नहीं करना है, यू ब्रिंग दैट बैग ओवर हियर. यू अंडरस्टैंड? सो इट इज़ अबाउट हेल्पिंग. फाइन. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हेल्प. एनीवे, मैं अपने ट्रिक्स बताता हूँ थोड़े. मैं क्या करता था, जब भी मैं डॉक्यूमेंटेशन में बैठूंगा, आई वुड हैव अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा पेन्स विद माई सेल्फ, राइट? बिकॉज आई नो किसी ना किसी को साला पेन खराब होगा ही होगा. ठीक है? सो राइट, आई कैन बी द सेवियर, राइट, एंड आई कैन बिकम द हीरो. फाइन. तो वहाँ पे बस छोटी सी बात है, राइट? बहुत छोटी सी बात है, बट लोग ना यहाँ से याद रख लेते हैं आपको. ट्रस्ट मी.
आप अगर ग्रुप में किसी के लिए कल हमारी क्लास चल रही थी तो महेश ने अपनी होता क्या ना, अभी रिव्यू, ठीक है, हम स्टोरीज रिव्यू करते हैं सबकी, तो महेश की बारी आई, अब लाइन थोड़ी लंबी थी, महेश ने क्या बोला, सर कोई बात नहीं, मेरी जगह ना इनका रिव्यू कर दो, ठीक है, मेरी तो बहुत रिव्यू हो गई है. नाउ दैट पर्सन हैज बिकम बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर विद महेश. यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो अगर इफ यू गिव अपॉर्चुनिटी टू द टीम मेंबर्स, ये होता है, ठीक है, ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड. एनीवे, तो कुछ एक्स्ट्रा पेन्स लेके जाओ, फाइन. व्हेनेवर इंटरेक्टिंग, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, बाकी अपने आसपास के लोगों को थोड़ा जल्दी से उठा दो, ठीक है. आई नो दिस माइट साउंड बुलशिट, बट लेट मी टेल यू, आई वाज चेस्ट नंबर 19 इन माय सेकंड एसएसबी दैट आई गॉट रिकमेंडेड. मेरे बाद वाला जो 20 था ना, वो दैट वाज चेस्ट नंबर 20, राइट? एंड दिस गाय, इन्होंने बोला था हमें जीटीओ में ना कि कमांडो वॉक पे चढ़ के ना अपना चेस्ट नंबर वो करना है, ठीक है, शाउट करना है. एंड दिस गाय वाज सो फॉन्ड ऑफ मी. मैं तो अपना चेस्ट नंबर 2 बार बोला ही बोला, वो भी बोल के आया, ठीक है. कमांडो वॉक में सब लोग परेशान कह रहे हैं, ये चेस्ट नंबर 19 चौथी बार क्यों कर रहा है कमांडो वॉक, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इट हैज़ अ वेरी डीप सबकॉन्शियस इम्पैक्ट. फाइन, डू दिस, ठीक है. ऑफ ग्राउंड्स भी डेवलप अ हेल्दी बॉन्ड. फाइन, चापलूसी नहीं करनी है किसी की, राइट? चापलूसी वाली बात नहीं है, बट the people around you who are going to be in your group, look out for them, right? Anyway, chalo, so this entire thing starts from there. Fine, now let's return to the initial point of discussion which we were discussing, कि basic series होती है ये पहली 4, है ना. यहाँ पे आप देखो generally क्या होगा कि if you have had a good impact towards the entire group, then whenever you say something, people will at least listen. That is what you want, essentially, ठीक है, that is what you want. Participation in the 4 basic tasks is less about having knowledge, having problem solving abilities, and but it's more about the group dynamics. आप पावर प्ले समझो यार, ठीक है. जीडी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जीडी में क्या होता था, दैट यार आई वाज नॉट अ गाय हु हैड वास्ट नॉलेज. फाइन, आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज. जो मैंने कोचिंग करी थी अपनी 2-4-5 दिन, उधर मैं 2-3 लोगों से इंटरेक्ट करा था, उनसे 2-3 कीवर्ड्स उठा लाया था मैं, बस. दैट्स इट, दैट्स ऑल द नॉलेज दैट आई हैड व्हेन आई गॉट रिकमेंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? इट्स नेवर अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज. हाँ, नॉलेज से आपको मेरिट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बट इट्स नेवर द नॉलेज दैट विल गेट यू रिकमेंडेड. इट इज द एटीट्यूड दैट विल गेट यू रिकमेंडेड, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलना चाह रहा हूँ. इट्स कंपटीशन अगर होता है ना, तो द कंपटीशन इज अगेंस्ट योर ओन सेल्फ. आपकी खराब आदतें, आपकी आदतें बीच में सबके बोलने की जबरदस्ती, ठीक है. सो यू हैव टू मॉडरेट, कीप दैट इन मॉडरेशन. एनीवे, मेरा क्या गेम होता था ना, आई न्यू, सी जैक मा का अगर आपको एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, you don't have to be the most intelligent person in the room, but you have to just learn how to get along with the most intelligent people. Fine, if you can manage them, then you understand, you can be a successful person. That is the entire concept, crux of what I'm trying to tell you guys here. Fine, जब GD में हम participate कर रहे हैं, you don't have to be the most intelligent person, but you just have to have sufficient knowledge कि आपको बाकी सबकी बात समझ में आ रही हो, ठीक है. एंड उतना तो हम कर ही सकते हैं यार, थोड़ा बहुत भी रीडिंग कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, इफ यू हैव अ बेसिक इंटेलिजेंस, ठीक है. तो अब उसके बिना तो देखो, अगर उतना भी इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर तो अब क्या कह सकते हैं, फिर तो अच्छी बात है, फिर आप, इट्स बेटर दैट यू बिकम डू सम अदर जॉब, बिकॉज अदरवाइज एक ऑफिसर के हाथ में उसके जवानों की जिंदगी होती है, समझ रहे हो. उसके एक खराब डिसीजन पे, तो अगर उतना इंटेलिजेंस नहीं है तो आई मीन, यू नो, यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर डिफरेंट एवेन्यूज, राइट, ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, राइट? सो ग्रुप डायनामिक्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दी एंटायर प्रोसीजर. फाइन, जीडी की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, मेरा क्या अप्रोच होता है, आई यूज टू डिवाइड द एंटायर ग्रुप इनटू 3 पार्ट्स.
और ये चीज़ स्टार्टिंग से ही जब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना डे 1 से ऑफ टेस्टिंग, तब से मैं आई एम मेकिंग सम इम्प्रेशंस. फाइन. There are three kinds of people that come to the SSP. There are three kinds of people you'll find in the group. One is the intelligent kind. ठीक है. Second one is the people who might have something to say, but they're not just getting the opportunity. Fine. कोई उनको disrupt कर दे रहा है, or something along those lines is happening, right? The third category is what I call potatoes. बस पहुंच गए वहां पे, है ना, उबलने के लिए बाकी सबके बीच में. ठीक है, क्या करना है कुछ नहीं पता, क्या करने आए थे कुछ नहीं पता, बस हैं, दे जस्ट एग्जिस्ट. राइट. भाई तेरे को क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे हूँ तो, है ना, दोज काइंड ऑफ पीपल. इवन इफ यू पुश देम दे विल नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है, इनफैक्ट वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा. राइट. सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ पीपल. नाउ हर ग्रुप की तरफ मेरी अलग अप्रोच होगी. फाइन. Those who are intelligent have a tendency to run. ठीक है. कुछ बंदे मिलेंगे कोऑपरेटिव, ऐसे बंदों के साथ ना आप कोऑपरेट करो. कुछ बंदे ही मिलेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे और कोऑपरेटिव भी होंगे. ठीक है. दीज आर स्मार्ट पीपल. फाइन. सो यू जस्ट कोऑपरेट विद देम. ठीक है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, अगर इंटेलिजेंट बंदा भाग रहा है तो भाई उसने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है. यू एसेंशियली हैव टू बिकम द ब्रिज between that guy and the rest of the group. ठीक है. So what I do, if I find an intelligent guy who can speak better than me, who has better knowledge than me, उस बंदे का मैं पॉइंट एक्सेप्ट कराऊंगा पहले ग्रुप में. ठीक है. एक बार एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज डीप डिजायर क्या होती है, आई वॉन्ट टू गेट हर्ड everyone, right? I want to contribute. So if I help him contribute to the group, he will have a positive image of me. ठीक है. अब इसके साथ I have one ally now in the group. Fine. Validation देना. Yes. ठीक है. I have one team member now. Okay. अब क्या ध्यान देना है, मैंने आसपास में कौन से बंदे हैं ऐसे जो बोल रहे थे और अचानक से कोई और बोल पड़ा, उनकी बात अनफिनिश्ड रह गई. ठीक है. उन बंदों को I want to encourage. I think this guy was speaking something about on this particular point. So let's hear what he has to say. आप समझो, स्टार्टिंग में गेम कंट्रीब्यूशन का तो होता ही नहीं है. स्टार्टिंग में गेम तो नॉलेज का है ही नहीं. नॉलेज इज ऑलवेज एन एड ऑन. You understand? If you're able to do this, now you have two allies rooting for you. You do this two to three times. अब ये जनता क्या करेगी ना, जनता आपसे बिल्कुल, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल कि भाई दिस गाय विल लिसन टू एवरीवन, राइट? एंड यू सेट द टोन फॉर एवरीवन टू कोऑपरेट एंड लिसन टू ईच अदर. दिस इज व्हाट लीडिंग थ्रू एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट. फाइन. उसके बाद फिर आप पॉइंट्स रखने चालू करो. ठीक है. Once the tone is set, once it is established that okay, this guy is here to listen and actually contribute, fine, and to cooperate in a team. Once this point is established, उसके बाद फिर आप contribution करना चालू करो. Fair enough. तो तीसरी कैटेगरी है ना, तीसरी कैटेगरी भाई उससे दूर ही रहना. ठीक है. उसको आप चांस देते हुए पकड़े गए, वो बोलेगा भाई तेरे को क्या दिक्कत है, मैं चिल भी नहीं कर सकता यहाँ पे बैठ के, है ना भाई. वो फिर देन इट इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑन योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. सो गिव चांस टू ओनली दोज हु वांट टू स्पीक बट दे आर इंटरप्टेड. ठीक है. राइट. सो फॉर दिस डू यू हैव टू हैव एक्सेप्शनल नॉलेज? I don't think. That is why they say it's a test of personality. It's not a test of knowledge. It's a test of your personality. आजकल ये सीन होने लग गया, थोड़ा मेरिट वेरिट का बैठने लग गया है, because lot of people are getting recommended, right? So recently, right? Otherwise पहले थोड़ा सा it was on the lesser side, right? Anyway, so I hope you guys understand that GD, ये दोनों GDs जो है, और फर्स्ट वाला थोड़ा सा रेगुलर टाइप का होगा. ठीक है. नॉलेज बेस्ड होगा. फर्स्ट वाले में कम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं.
फर्स्ट वाले में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपको किसी का पॉइंट वैलिड लग रहा है ना, एग्रीमेंट दो. People ignore this fact that nobody appreciates any other person's point. मेरा हमेशा गेम ही यही होता था. I'll start with excellent point, ladies and excellent point made by this chess number. You understand? You encourage, and it should be, you should actually genuinely listen to the points. फाइन, प्रोसेस करना ज़रूरी है वहाँ पे. मैं पहले ठंडे दिमाग से बैठूंगा, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मेरे को क्या बकना है, सॉरी क्या बोलना है, राइट. मैं पहले ये सुनता हूँ कि भाई जनता क्या चाहती है. फाइन, बाकी 9 बंदे किस टोन में है. ओके, स्मार्ट वाला बंदा है वो किस बात पे बोल रहा है, उसकी वैलिड है या नहीं है बात. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. सेकेंड नोट इज never disagree. Never disagree until and unless it is immoral, it's unethical or it's illegal. Fine. अगर कोई बंदा immoral, unethical या illegal बातें नहीं कर रहा, then don't disagree. Always go with partial agreement. Great point made by so and so. I would also like to contribute. और फिर आप बात रखो अपनी, भले ही एग्जैक्टली ऑपोजिट तरफ हो. ठीक है, क्योंकि होता क्या है, डिसएग्रीमेंट्स दे लीड टू नेगेटिव फीलिंग्स एंड उसके बाद फिर लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो, राइट. अब वो बंदा इसलिए नहीं आपका पॉइंट वो करेगा कि देखो देखा होगा आपने, हम लोग सारे गाड़ी चलाते ठीक है, और एटलीस्ट गाड़ी में बैठे होंगे, है ना. ठीक है, तो कभी कभी मिलता नहीं है एक बंदा ऐसा कि अबे ओवरटेक कैसे कर दिया तूने, अब देख गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, राइट. अब वो पैप 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 करके डिपर मार के, और थोड़े क्रेटा ओनर्स तो खासकर इसके लिए थोड़ा नोन है ना, पीछे यमराज की बत्ती आती है ना तो फ्लैश तो सारे अच्छे साइड हो जाते हैं, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इट्स जस्ट अ रेस टू प्रूव अ पॉइंट. इट डजंट हैव टू बी लॉजिकल. ही विल ब्रेक ऑल द रूल्स. ठीक है, यू डोंट वांट एनीवन आफ्टर योर एस लाइक दैट. यू अंडरस्टैंड. तो भाई डिसएग्रीमेंट वाला गेम खेलना ही नहीं है अपने को. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट. एंड लेट मी टेल यू, वंस यू सेट द टोन, क्योंकि जीडी और अच्छा एक और चीज होती है स्टार्टिंग में, मतलब एंट्री होने से पहले कुछ चटक मिलते हैं ऐसे बंदे, अरे यार भाई वी विल कंट्रीब्यूट, वी विल लेट एवरीवन स्पीक, है ना, सारे ऐसे ऐसे काम करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो पहले 1 मिनट बोलना, फिर तू 1 मिनट, तू इसको देना, तू उसको देना. लेट मी टेल यू, दिस इज क्लियरली विजिबल. ठीक है, आप मेरे को पहले लगता था व्हेन आई यूज्ड टू बी अ कैंडिडेट, तो तब मेरे को लगता था कि यार पता नहीं चलेगा किसी को, है ना. बट ट्रस्ट मी, आफ्टर इवेल्युएटिंग अ लॉट ऑफ जीडीज एंड नंबर ऑफ जीडीज, आई कैन टेल कब कौन बंदा पैटर्न बना रहा है और कौन साले कोचिंग वाले बन के आए हैं. ठीक है, तो इट डजंट मैटर अगर कोचिंग वाले डोमिनेट भी कर रहे हैं ना, भाई यू कैन ऑलवेज पुट योर पॉइंट. व्हाई? बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक. जस्ट हैव टू बी लाउड स्लाइटली. लाउड ऐसा भी नहीं कि चिल्ला रहे हो. ठीक है, बट फौज में क्या है ना, देखो असर्टिव बंदे चाहिए थोड़े. आर्मी में आप जा रहे हो तो ठीक है, असर्टिव क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल नेचर है फौज का, राइट. इट इज अ लैंड वॉरफेयर वाली ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो द गाइज दैट गो देयर, दे हैव टू कॉन्कर टेरिटरी एंड दे डोंट हैव टू बैक डाउन. ठीक है, तो आपने कुछ अगर गलत नहीं करा, यू हैव द राइट टू स्पीक एंड सो डज एवरीवन एल्स. यू अंडरस्टैंड. तो अगर कोई कुछ बंदे अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो पोलाइटली बट फर्मली पुट योर पॉइंट देयर कि अच्छा ठीक है भाई, आपका पॉइंट अच्छा है, यस अग्रीड, ये बात भी है. ठीक है, एंड यू शुड फाइट फॉर योर ओन राइट टू स्पीक एंड अदर्स राइट टू स्पीक. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना. सबसे ट्रिकी ये जो सिनारियो आता है ना मेरे पास, यही वाला आता है. सर कोचिंग वाले बैठे हुए थे उसमें, भाई कुछ देर अपनी वाली करने दो उनको, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियस हो जाता है वो चीज़,
right? Meanwhile, you should try to participate, fine, or make it very obvious for the GTO. वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बंदे, ठीक है? सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ. So this is about the GD, fine. Any doubts related to GD? If you guys have any doubts, please ask before we move on to the next portions. GP का ना कल मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है? How to study for GD? Sir, is it right to be counter argumentative in a GD? No, not in Forge. Not in Forge. You will garner more discontent than actually display teamwork. Fine. तो या तो फिर आप अपने उसमें एक्सेप्शन क्रिएट करोगे फिर कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा है दैट आई हैव अ काउंटर, आई मीन यू नो आई हैव अ argumentative point of view and my friends say that this might create an issue and my teachers also say, ठीक है? या तो आप एक्सेप्शन क्रिएट करो उसका वहाँ पे, fine, otherwise it might be problematic because people will find it very difficult to work with you, fine. All right, all right. Yes. I have one more doubt. Hmm. Like from my previous SSB, there is two guys from the Manipur. They are not able to speak up due to the lack of communication. So that discussion, I helped them. Like I was the one that, like, who was promoting them. Like they were giving some points, but due to some interruption, they were always interrupted in between. Okay. So is it right or is it it goes totally against me? Like I wanted to know about that. Yeah, it is, I would say it is right. It's not wrong at in any context, ठीक है? So helping out and encouraging others to speak is not a bad point. क्या होता है देखो, डेमोक्रेसी में कौन होता है? हमारे लीडर्स, जो सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, व्हाट डू? दे रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, issues of the common man at the parliament, fine, at the state legislative assemblies. You have to speak for the people, fine. उसके पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा, correct? So if you do apply this strategy when you go to the GD, the strategy will hold, right? ठीक है? Yeah, it did. Like the other subordinates were listening to me. Like after I make this statement in the GD. नहीं, they don't call them subordinates. No, Bro. sorry, the other contestants. Yeah, team members. Always refer to them as team members. ठीक है? As Yes. equals. They are your equals. Yes, yes. Fine. ठीक है? हेलो सर, Hello. आई हैड दैट इन जीडी हमें एक, अगर हमें मौका मिलता है बोलने का, तो हमें अपने पॉइंट सारे एक साथ रख देने चाहिए या फिर बीच बीच में हमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए? देखो, अभी तक आपने कुछ सीखा है, समझा नहीं। फिर आप देखो, आपको ना स्टार्टिंग में अगर आप चारों पॉइंट्स एक साथ रखने के उसमें हो तो दैट वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, मेरी क्या जनरल स्ट्रैटेजी होती थी ना, देखो 2-3 बंदों की बात सुनूंगा मैं इनिशियली, ठीक है? आई विल लेट देम स्पीक बिकॉज उतने में क्या है ना, जितने जोशीले हैं ना उतने बोल के जोश ठंडा हो जाता है उतने बंदों का, ठीक है? मेरे को भी आइडिया मिल जाता है टू प्रोसेस दी ऑल द 3 लीड्स, ठीक है? उसके बाद मैं एक लाइन में या 2 लाइन में अपना ओपिनियन रख दूंगा। उसके बाद आई विल फोकस मोर टुवर्ड्स द ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। यस। तो हौले हौले, क्योंकि क्या है ना, देखो मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट एक ही बार में मैंने खाली कर दिए, ठीक है? तो उनकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि बाद में क्या है ना, दूसरा एक पॉइंट उठा के मैं किसी और बंदे की बात को वैलिडेट कर सकता हूँ और मैं एक नया टीममेट बना सकता हूँ अपना, पर लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने पहले ही दे दिया तो वो पॉइंट इफेक्टिविटी लूज कर जाता है अपनी, ठीक है? और रिपीटिशन इज नेवर द आंसर माय फ्रेंड्स, ठीक है? तो क्योंकि नो मैटर
क्या चल रहा है ग्रुप में, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर आप सेंसिबल बात करोगे ना कोई अग्री कर जाएगा आपकी बात से। आपको ये बात समझनी है। तो अगर आपने सेंसिबल बात करी होती तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? सो डोंट रिपीट योर पॉइंट्स। यस सौरभ। Hello, sir. From my last SSB, what happened in the GD? I was trying to speak my points, but there were 2 to 3 other candidates who were continuously speaking, and as I was giving my point, the another one was cutting me. हाँ So it happened around 3 to 4 times, हाँ and but still I was not able to give my point correctly. ओके, देखो So एक रूल देखो। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको। ठीक है, सी दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम कि वही वाली बात है सर, मैं कंपीट करूं या कोऑपरेट करूं, ये वही वाला। दिस इज द दैट सेम हेडिंग इन क्वेश्चनिंग, वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, आई विल आंसर द क्वेश्चन। सी आई ऑलवेज हैव दिस। अब देखो, आपने सुना होगा श्री कृष्ण ने अपनी शायद बुआ को वचन दिया था, है ना, कि उनके लड़के को, क्या नाम था, किसी को याद है? शिशुपाल। शिशुपाल। ठीक है, शिशुपाल की 99 गलतियां माफ। ठीक है, तो जब तक वो गाली दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तब तक शांति रखी उन्होंने। जैसे 99 पूरी हुई, उसके बाद चला सुदर्शन चक्र। ठीक है, शिशुपाल का सर धड़ से अलग। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग कर देना किसी का सिर। ठीक है, पर आप बात समझो, देयर शुड बी अ नंबर। ठीक है, अगर मैं एक बार बात बोलनी चालू करी, मैंने, किसी और ने मेरे को इंटरप्ट करा, ठीक है, तो वो वाली बात मैं उसकी रख दूंगा। मैं कहा चल भाई ठीक है, तेरी कोई बात नहीं। दूसरी बार जब मैंने बोलना चालू किया, उसने फिर मुझे दबाया, और अगर मैं दब गया यहाँ पे, तो फिर अब वो विक्टिम बनाएगा पूरे जीडी में मेरे को। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, हैव अ नंबर। मेरा जनरली एक का वो होता है, एक बार मैं किसी भी बंदे को रिस्पेक्ट दूंगा। अब वो मैं काउंट करके रखता हूँ। ठीक है, हर बंदे के हिसाब से। ठीक है, इसने एक बार काटा, इसने 2 बार काटा, इसने इतनी बार काटा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? तो एक बार उसको मैं रिस्पेक्ट दूंगा, दूसरी बार मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ। सर मुझे ये पूछना है, जो जीटीओ का जीडी होता है, इसमें रिपीटर्स और फ्रेशर्स का ग्रुप अलग अलग बनता है या मिक्स बनता है इनका? यार अलग अलग बनता है, बट कभी कभी क्या होता है कि ऑड इवन नंबर थोड़ा सा हो जाता है ना, कि 22 रिपीटर आ गए और 8 फ्रेशर है, लेट्स से। ठीक है, तो इस जाहिर हिसाब सी से रिपीटर्स डोमिनेंसी में आ जाते हैं शायद। डोमिनेंट तो नहीं यार, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ। डोमिनेंट अगर हो गए रिपीटर, तो फिर उनका सिलेक्शन मुश्किल है। दे हैव टू बी कोलैबोरेटिव, दे हैव टू लीड, बट दे ऑल्सो वॉन्ट एवरी वन एल्स टू कोलैबोरेट। समझ रहे हो? अगर मैं अकेला ही अकेला भाग रहा हूँ ना, तो मेरे को रुक के सोचना चाहिए कि भाई मैं टीम को साथ में ले लूँ। आप समझ रहे हो? तो ज्यादा मैं, अगर सिर्फ मैं ही नॉलेजेबल बंदा हूँ पूरी टीम में, और वो सारे पॉइंट मैं रख के जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए ना, 2 पॉइंट रखने के बाद ना 1 सेकंड ठहरो। ठीक है, और बाकियों से भी कोलैबोरेशन निकालो थोड़े से उनके पार्टिसिपेशन, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट रखूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? फाइन, सो दैट इज हाउ इट शुड बी। हेलो सर। यस रोमिल, जस्ट 1 सेकंड। पहले ये अभिषेक हैड रेज्ड द हैंड, राइट? सो प्लीज पुट योर हैंड अप, एंड यस अभिषेक। अभिषेक यू नॉट ऑडिबल ब्रो, कमेंट में डाल दे भाई। ठीक है, यस रोमिल। सर अभी मान के चलो सर, जीडी में अगर पीस मार्केट चल रहा है, लाइक लोग कोई पॉइंट सुनना ही नहीं चाहता, तो मैं अपने पॉइंट साउथली बोल सकता हूँ, लाइक लाउडली क्या पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं जब वो होता। सुनने को तैयार ही ना हो, मतलब इतना पीस मार्केट चल रहा है, कोई अपना पॉइंट देने नहीं दे रहा, तब एक मैं लाइक मेरी हाई वॉल्यूम है, तो मैं तेज चला के बोलूँ, तो लाइक हैव पेशेंस। नहीं, आप क्या अलग कर रहे हो? ठीक है, मतलब वो वाली बात है कि सब रेस लगा रहे हैं सड़क पे, ठीक है, तो मैं भी अपनी गाड़ी बढ़ा देता हूँ, भले ही ठुक जाए, कोई बात नहीं।
वो वाली बात होगी ना फिर, है ना, ओके सर। राइट? सो दैट इज नॉट द आइडियल फॉरवर्ड माय फ्रेंड, नो। देखो अगर कोई बंदा आपको बार बार आपकी बात काट रहा है, only in that case you should raise your voice, otherwise you should not raise your voice throughout the GD. It should be loud enough, yes, yeah, but you should not scream, थैंक यू right? सर। Otherwise what you're doing, ओके देखो यार, chaos अगर है GD में and you're also a creator of that chaos, you are a contributor to that chaos, then you are, okay, what is the role of leaders? They establish order from chaos, correct? So if you're someone who's taking the group from order to chaos, then it is a question on your leadership, right? You're being insecure, आपको ये लग रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आप वेट नहीं कर सकते। और मैं बताता हूँ होता क्या है ना, ऐसे में आप जब चीखने लगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट, ठीक है। उसके बाद जब लोग चुप होंगे ना अचानक से, सारे 4-5 बंदे एक साथ बोल बोल के जब नहीं सुनाई देते यार, नो बडी कैन डिफ्रेंशिएट वन पर्सन्स वॉइस फ्रॉम द अदर। लेट मी टेल यू, मैं बोलना चालू करने लगा था ना एक बार फिश मार्केट में, मैंने भी कोशिश करी है ना, मेरे को अपनी आवाज़ नहीं आई, मुझे अपनी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, आई कुड नॉट डिफ्रेंशिएट माई ओन वॉइस फ्रॉम अदर्स, ठीक है। और मेरी आवाज़ तो सबसे करीब मेरे ही है, फाइन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द नेवर द solution, right? ओके सर। Any other सर आई questions? आल्सो हैव वन क्वेश्चन। Hmm. सर लाइक मैंने अभी बीटेक अभी जस्ट कंप्लीट किया है, तो मेरी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आ गई है, तो हाँ। उसके मुझे बोनाफाइड लेके जाना पड़ेगा सर? यार आजकल ना ये, हाँ, कंप्लीट कर लिया तूने? सर जुलाई में कंप्लीट हुआ है, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, बट अभी तक फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है। प्रोविजनल ले जाना, ठीक है। प्रोविजनल वैसे लाइक भाई मतलब ये और पता है, मतलब ये उसमें सुनो, ही ये सुनो, नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना ज़्यादा अच्छा आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई। सो प्लीज डू दैट, राइट? लेट्स फोकस ऑन द ओके कॉन्सेप्ट्स, सर। ठीक है। यस अभिषेक, नहीं आ रही है ब्रो कुछ, देयर सम इशू विद योर माइक और समथिंग, राइट? सो अगर तू लिख देगा ना कमेंट में तो मैं आंसर कर दूंगा उसका, ठीक है। यस अविनाश। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर जीडी में एक्चुअली ये हुआ था पहले दिन ही, हम्म। वहां पे एक लड़का था वो उठ उठ के बातें करने शुरू हो गया, तो मतलब हाँ, सर और बहुत उसी बढ़िया, को कर लिया ने, उसको, उस सिलेक्ट हो गया सर वो। हम सब शॉक कि वो कैसे हो गया, वो अच्छा। रुक ही नहीं रहा था, उसको वो रुक ही नहीं रहा था, बोले जा रहा था, बोले यार कंटिन्यूअसली देख बोले। उसके पॉइंट्स में लॉजिक होगा, फिर अच्छा अच्छा। लॉजिक होगा उसके पॉइंट्स में, ठीक है। तो कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट को दे दिया जाता है, ठीक है, अगर बात में दम है उसकी, ठीक है, अच्छा अच्छा। राइट? सो वही वाली बात है, तो मतलब इट्स अ वेरी मार्जिनल वाला सिचुएशन रहा होगा, ठीक है। सर हाँ एक और चीज भी है ना, उसी में हमारे ग्रुप में ही उसी में एक बंदा था, उसने सिर्फ नरेशन दी, अच्छी नरेशन दी, उसकी डिस्कशन में पार्ट ही नहीं लिया उसने, हम्म, वो भी सिलेक्ट हो गया, वो कैसे उसका हुआ? कंटेंट अच्छा हो यार, देखो कंटेंट हाँ ऑलवेज, उसकी स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी हाँ अच्छी थी, बट कंटेंट उसने डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया। नहीं लिया होगा क्योंकि फिश मार्केट होगा। नहीं, फिश मार्केट बन गया था, फिर उन्होंने डिवाइड कर दिए 2 ग्रुप, बट अच्छा फिर भी उसने पार्ट नहीं लिया। अच्छा, सर हो यही जाता है सेम ये भी चीज कोई, उल्लास के साथ भी हुआ था। अच्छा। यार ये पता है बहुत ज़्यादा मार्जिनल केसेस जो है ना, आप यू शुड नॉट बेस योर एंटायर प्रिपरेशन ऑन दोज थिंग्स, है ना। हम क्योंकि एक्सेप्शनल चीज़ों की से अगर हम एग्जाम्पल सीखने लग जाए ना, एक्सेप्शन से कभी जनरल रूल मत बनाओ, ओके सर। ठीक है। क्योंकि फिर क्या है ना कि वो कुछ सिचुएशन में काम करेगा, कुछ में नहीं करेगा, यस वो सर। नुकसान हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। But the points that Ullas was putting forward were very crisp and clear. मतलब उसका आइडियाज बहुत अच्छे थे जो चीजें मैं पुट कर रहा था। अच्छे रहे होंगे ना, तो वही तो तो है ना, maybe वो कंटेंट, कंटेंट हाँ ऑलवेज मैटर, है content। ना। आपको भी देखो छपरी वाले नहीं पसंद आएंगे ओके यूट्यूबर, सर। ठीक है। यस छपरी सर। उस्ताद को देख के सब क्रिंज करते हैं, ठीक है, डॉली चाय यस वाला, सर। राइट? यू यस सर। अंडरस्टैंड, कंटेंट इज ऑलवेज सुपीरियर गाइस, राइट? ओके, थैंक यू सर। श्योर श्योर। यस इंदू।
Yes, yes, sir. So my doubt was, suppose somebody spoke a point, and that is like totally contradicting to rest of us. So like, Totally how contradicting to to immediately yours. speak? देखो मैं बताता हूँ क्या है ना, अगर किसी ने पॉइंट रखा है और वो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी है आपसे, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अगेन मैंने आप लोगों को गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दिया आज, है ना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में देर इज रूम फॉर डिसेंट, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी interesting and very primary features of democracy is that it takes into account the opposition, the opinion of the opposition, ठीक है। so take into account contrary opinions also, है ना, so you don't have Yes, to, sir. right, so take it into consideration, that's it, ठीक है। everyone has the right to exist, fine, and put forward their points, ठीक है। तो हमें वही कह रहा हूँ मैं कि बस हमें encourage करना है दूसरों को अपने पॉइंट्स सामने रखने के लिए, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी का पूरा गेम ही यही है। यस उमा। Sir, in my last attempt in IO, before, Individual obstacles, sir, individual obstacles, right? yes, individual obstacle. My chance was started, but my before girl, she was still doing. So Okay. as soon as sir told me to start, I did commando work, and my next individual obstacle was Burma Bridge. So the girl still she did not complete the Burma Bridge. So it will be like we will be choosing first, second, third. So I was standing near Burma Bridge to complete. For like I मतलब क्या बोलते हैं, मैं ऐसे वेट कर रही थी कि उसको कंप्लीट कर, सो आई वेस्टेड माय टाइम आई थॉट, एंड सर आल्सो टोल्ड मी कि बहुत ही बढ़िया। You could have chosen a different one यार, come on, I mean क्या, यस सर, लाइक हाँ, मैं थोड़ा मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके मैं फिक्स हो गई थी माइंड पे, तो आई जस्ट नहीं वेटेड फॉर। उतना फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए भाई। माय गॉड, नहीं यार, तो उसको उसको पता है फिर क्या सिग्नल चला जाता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये और ये लड़की जो है, शी इज नॉट थिंकिंग एक्टिवली, शी इज नॉट यूटिलाइजिंग हर सेंसेस, ठीक है। it might not be a thing which can cause your selection rejection, ठीक है, बट इट कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, एक आध दो नंबर, अब डिपेंड करता है, एक आध दो नंबर काट सकते हैं इसके, ठीक है। और ओके ओवरऑल आपका स्कोर जितना आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में स्कोर कर सकते थे उतना नहीं करोगे, ठीक है, तो इट्स दो तरफा मार, ठीक ओके, है। थैंक यू। श्योर। यस अंकित। सर एक चीज ठीक है सर, हमारे जो मैच में जीडी में एक बंदा था जो एकदम नॉर्मल टोन में बोल रहा था, लेकिन वो ऐसे बोल रहा था कि वो 10 मिनट तक 20 मिनट की जीडी में 10 मिनट तक वही बोल रहा था बस, भाई ये ग्रुप को फिर शांत करा रहा है, वो नहीं हो रहा, और तो दोनों जीडी में मैक्सिमम वही बोला, हाँ नॉर्मल कंटेंट भी दे रहा है, लेकिन ना वो एकदम माइल्ड टोन है, ना वो ज्यादा चिल्ला रहा है, ना वो किसी को ज्यादा मौका दे रहा है, खुद ही बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, इग्नोर बोले जा रहा इग्नोर है। करो ऐसे बंदों को ना। हम कई बार क्या होता है ना कि देखो, हम जब पार्टी में गए हैं, ठीक है, पार्टी में गाने बज रहे हैं, है ना, और हम फिर भी तो बात कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना, यस सर। तो वही करना है, ठीक है। उसको बजाने दो अपना गाना, ठीक है, आप बात करो, वो बंदे जो सेंसिबल है, अटेंशन ही मत दो उस बंदे को ना, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बंदे अटेंशन पे ही फीड करते हैं, उनको चाहिए ही वही, ठीक है। तो आप गलत हो जाते हो वहां पे, अगर आपने अटेंशन दे दी उसको। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े से देर से समझ में आए, तो जैसे आपको समझ में आ गया ना, ऐसे बंदे को इग्नोर करो, देखो ही मत उसकी तरफ, ठीक है। वो खुद ही अपने आप कुछ देर में जब नहीं देखेगा ना कोई, शांत हो जाएगा, सर ठीक है। यही प्रॉब्लम था सर, हाँ होल ग्रुप वाज लाइक हमें बोलने का मौका दो बस, लेकिन वो सेंटर में बैठा था तो बोले जा रहा था बस वो। अच्छा अच्छा, नहीं भाई ऐसे बंदे ना, देखो, अगर 5 मिनट भी ऐसे बंदे ने वो कर दिया ना, तो यार 5 मिनट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि ये साला क्या सोच के आया है, जिहाद करने आया है ये यहाँ पे, ठीक है, और इसके चक्कर में हमारा भी काम खराब, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, राइट। यस अनुभव।
सर हमारे पीपीडीटी के सर डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में सर, देयर वाज अ ह्यूज फिश मार्केट एंड सर किसी का कोई पॉइंट नहीं समझ आया सर. डिस्कशन वाज अबाउट 5 मिनट्स सर. वी वर द मतलब फ्रेशर्स का ग्रुप था और सर 5 मिनट डिस्कशन चला, एक भी पॉइंट सर. इतना ज्यादा फिश मार्केट था सर 8 के ग्रुप में, उन्होंने ग्रुप को भी नहीं डिवाइड किया. एंड सर अच्छा बट जैसे ग्रुप फिनिश हुआ तो सर सबने मतलब मुझे नॉमिनेट कर दिया, और तो सर उसमें स्टोरी किसी की समझ नहीं आई थी सर. भाई तो ऐसे में ये क्या करें? देखो, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा अगली बार से, ठीक है? ये जब ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना, तो इसको कहते हैं उड़ता तीर देना, ठीक है? तो ठीक है, तो ये सब कोशिश करते हैं भाई मेरे तरफ ना आए, राइट? यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट, राइट? तो आप वो करो, पहले ही कर दो ना, उनके करने से पहले आप कर दो, ठीक है? इसका जी कोई सर. इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर आ ही गया मान लो आपके ऊपर, ठीक है, तो फिर आप ऐसे करो, मेरी क्या एक ट्रिक होती थी कि एज डिस्कस बाय द ग्रुप दीज वर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर आफ्टर द एज डिस्कस बाय द ग्रुप, ठीक है? हर लाइन से पहले भैंस क्या वही लगाऊंगा, अब एज डिस्कस बाय द ग्रुप, ठीक है? एज डिस्कस बाय द ग्रुप, ठीक है? क्योंकि हुआ तो कुछ है नहीं तो बस वही वहां पे उतना ही स्मार्ट गेम कर सकता हूँ मैं, दैट्स इट, जी सर राइट? समझिए. ठीक है। सम पीपल आर आस्किंग सर लास्ट तक डाउट सेशन ही चलेगा। तो देखो यार, इसके बाद क्या होता है हम बात करते हैं। देखो पीजीटी में टू बी ऑनेस्ट बहुत डिटेल तरीके से करा नहीं सकता है ना यहाँ पे, बट पीजीटी के, अच्छा चलो पीजीटी के कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़े, राइट? देखो एक तो कैंटिलीवर प्रिंसिपल होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट, राइट? कैंटिलीवर अभी अगर मैं बताने बैठूंगा आपको, कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा एग्जाम्पल्स के साथ समझाने में, ठीक है? तो वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट, राइट? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हम कल के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ, लेक्चरेट लेक्चरेट करना है अभी, चलो दोनों, देखो टाइम परमिट करता है, हम 9 बजे तक करते हैं, ठीक है सेशन, एंड टाइम परमिट करता है हमें, तो थोड़ा सा लेक्चरेट करेंगे, फाइन। एंड ऑब्स्टिकल्स वाला, यार ऑब्स्टिकल्स वाला तो चलो मेरे को, मैं आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्स्टिकल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? कैंटिलीवर है ना, ठीक है, ओके चलो पीजीटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीजीटी में पीजीटी रिलेटेड 4 टास्क होते हैं। लेक्चरेट, पता है लेक्चरेट का ना बस एक हवा है, ठीक है? क्योंकि उसमें ना 3 मिनट अनअसिस्टेड बोलना सबसे बड़ा खौफ की बात हो जाती है, तो उसका बस फियर है, पता है? असली में बहुत कम इम्पैक्ट है उसका सिलेक्शन या रिजेक्शन पे, ठीक है? असली में उसका बहुत कम इम्पैक्ट है। और लोग, और पता है मैं मतलब ये मैंने देखा है ओवर द इयर्स, आई बिन वर्किंग विद डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर अ व्हाइल नाउ, राइट? तो सबसे ज़्यादा जनता इसी से परेशान होती है, और सबसे ज़्यादा लेक्चरेट की ही डिमांड होती है, ठीक है? वो भी छोटे से में कवर कर देंगे, बट कुछ ज़्यादा खास है नहीं टू बी ऑनेस्ट लेक्चरेट में, इट्स ओनली अबाउट प्रैक्टिस, फाइन? प्रैक्टिस नहीं होती है तो लोग उसको ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? यार अपना रोटू रिकमेंडेशन वाला जो चैनल है ना, इस पे सर्च कर लो आप, जो लेक्चरर ढूंढोगे वो मिलेगा आपको, ठीक है? टॉपिक ढूंढ लो बस, स्क्रीनिंग जीटी और नॉर्मल जीटी, डिफरेंस है, टेस्टिंग कंडीशंस का डिफरेंस है, प्रिंसिपल सेम है बट टेस्टिंग कंडीशंस का डिफरेंस होता है, पैरामीटर्स आर डिफरेंट, ठीक है? एनीवे चलिए तो पीजीटी की बात करते हैं। सो गाइस देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट पीजीटी, अच्छा ओके ठीक है, हाँ ये मेरे काम की चीज़ कुछ बोली है ना, तो अब बात करिए तो देखो बात कर लेते हैं, ठीक है? ऑल अपकमिंग मैचेस है ना, अब पूछा है तो, राइट? सो देखो 15 तारीख से अपन इस बार, हमारा देखो एक सेट फॉर्मेट होता है। अच्छा, आई ऑल्सो हैव अ बिग अनाउंसमेंट टू मेक। अभी वी आर अबाउट टू रोल आउट द वेबसाइट, लेजेंड वेबसाइट फुली फंक्शनल, अभी वेबसाइट है बट पैम्फलेट की तरह काम कर रही है बस, ठीक है? विल वी विल रिलीज अ वेबसाइट विच विल इंक्लूड, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी ना हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, राइट? जस्ट वन मोमेंट, इट विल बी फ्री फॉर ऑल टू एक्सेस, सो दैट आप लोग जाने से पहले प्रैक्टिस कर लो,
ठीक है. It helps in visualization, right? I'll show you. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने तो देखा ही हुआ है ना, बट दिस इज हाउ इट्स गोना बी, राइट? सो वेरी सून विल गेट इट अप एंड रनिंग, ठीक है. सो वी हैव दिस 3D थिंग गोइंग ऑन, है ना. अब इसमें ना क्या है, इसमें फोकस किस चीज़ पे है? सॉल्यूशंस पे. सॉल्यूशंस हम रेडीमेड नहीं देंगे यार. आई एम सॉरी, ये इशू ना थोड़ा सा फेस हो कर रहा हूँ मैं. I mean, we have a staff, उनका कुछ important, I mean, we have, अभी तो हमारे पास पार्ट टाइम स्टाफ ही है, ठीक है. सो विच इज़ आई एम वर्किंग ऑन गेटिंग अ बिगर टीम, फाइन. तो थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लो फॉर द टाइम बीइंग, राइट? आई विल गेट things resolved in the future, ठीक है. So this is not going to happen anyway. So this is how we are going to, like, practice the structures and everything, fine, in the batches also, है ना. It helps in visualization, fine. Visualization is the main key, right? आप मेरी बात समझो. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, अगर मैंने पता है, आई हैव स्टडीड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ टॉपिक. तो मुद्दे की बात क्या होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि अगर आप सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है, if you want to successfully solve a problem, so rather than running behind the solution, what you should focus on is analysis. If you can effectively break down the problem into its components, तो आपका problem automatically solve हो जाएगा. Why? Because if you break it down into smaller pieces, your subconscious mind starts doing the work automatically. कई बार मैथ सॉल्व करते हुए आपने नोटिस करा होगा, सॉल्व करते करते ना प्रॉब्लम को तो बड़े अच्छे से समझ लिया, बट सोल्यूशन नहीं आ रहा है. फिर आप गए उठ के पानी पीने, वापस आए, दोबारा ट्राई करा, सॉल्व हो गया, ठीक है. इट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एनालिसिस पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए. हम अपने बैचेस में वही करते हैं, ठीक है. अच्छा, सो वी आर ऑल्सो अबाउट टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म, something similar to Unacademy, right? App भी होगी, ये भी होगी. Anyway, so every 1st and every 15th we have psych interview batches starting, ठीक है. नेक्स्ट मंथ से फिर GTO भी अब होने वाला है, फाइन. So we are about to start off with GTO batch on 17th this month, है ना. Every time, every 2 weeks we have a fresh batch starting, फाइन. उसी टाइम के आसपास हमारा स्क्रीनिंग बैच भी चालू होता है. स्क्रीनिंग बैच टिपिकली स्टार्ट्स 2 days आफ्टर द साइक एंड इंटरव्यू बैचेस, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली यू गाइज कैन गो फॉर इट, राइट. फी मैं बता देता हूँ, फी डिटेल्स. वी हैव फॉर साइक इंटरव्यू एंड GTO तीनों का 15 days होता है. 15 days हम बोलते हैं, बट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है. 20 days 21 days तक चला जाता है, ठीक है. बीच में मान लो कुछ छुट्टी वुट्टी पड़ गई, है ना, या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की और थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम एक्सटेंड भी कर देते हैं, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी डू, फाइन. फी फॉर ऑल 3 बैचेस इज 3000, ठीक है. 15 days का ड्यूरेशन तो है ही, राइट. माई फ्रेंड राहुल, यू शुड गो टू अ इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट. पहले 2 महीने जा, उस पर काम कर, और उसके बाद फिर SSB की तैयारी कर, ठीक है, राइट. एंड फॉर स्क्रीनिंग बैच वी हैव 1 week, फी इज 1000, ठीक है. बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को मैसेज कर देना आप मेरे को, है ना. आई शेयर ऑल द डिटेल्स. 3000 ईच, यस, 3000 ईच. एंड इफ यू गो फॉर द एंटायर बैच वी हैव अ डिस्काउंट, ठीक है. सो चारों चीज़ों के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो, सो दैट विल बी द कंबाइंड फी विल बी 9000, फाइन. इंस्टेड ऑफ 10,000 इट विल बी 9000, ठीक है. एंड इफ यू गो फॉर साइक एंड इंटरव्यू, सो हम वहाँ पे 500 ऑफ दे देते हैं, ठीक है. 5500 में गेट इट डन, है ना. कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, बट यार गाइज, यू गो आउट इन द मार्केट, आप लोग देखो एक बार, ठीक है. आप पता करो, है ना. या तो जहाँ पे आपको कम फीस मिल रही होगी हमारे से, उधर बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिल रहा होगा, ठीक है. या फिर आपको अगर ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, तो वहाँ पे पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा, समझ लो. तो इट्स अ ट्रेड ऑफ, राइट. ऑनलाइन में फिलहाल वी हैव द बेस्ट कोर्सेज दैट आर आउट देयर, फाइन. 3 साल से मैंने काम ही इसी पे करा है, समझ लो. You can drop me a message, okay. Anyway, चलिए, moving ahead. So let's talk about PGT. Okay, what's a better option in a fierce GD fish market? To try bringing the chaos down or fail trying to adjust? देखो क्या होता है ना, 2 बंदे अगर लड़ने के लिए रेडी है ना, तो मैं उनको समझदारी की बात उनके सामने कर सकता हूँ, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पगुरा लेने देता हूँ फिर उसको, भाई तू कर ले थोड़ी देर, है ना। क्योंकि क्या होता है, आपने अगर वो देखा होगा, एक शो आता था डिस्कवरी पे, ठीक है, क्रोकोडाइल ब्रदर्स या कुछ ऐसे करके नाम था, है ना। 2 भाई थे, वो मगरमच्छ पकड़ने जाते थे, ठीक है, एंड उनको पकड़ते रहते थे, ठीक है। यस, देखा होगा अगर किसी ने तो, फाइन। तो वो क्या करते थे हमेशा, वो पहले उसको ढक देंगे, फाइन, और उसको फिर तड़पने देंगे, ठीक है। हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारने के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, मारने दो ना, फिर करने दो। 20 मिनट चिल्ला लेगा पूरा, क्या लगता है आपको 20 मिनट चिल्ला सकता है कोई पूरा टाइम? नहीं ना, 5 मिनट ही तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 सुनार की 1 लोहार की, वो वाली बात है, ठीक है। बीच में आप बात कर सकते हो, समझदारी की बात कर सकते हो उसके सामने, लेकिन अगर नहीं मान रहा है तो करने दो फिर उसको, ठीक है। आप देख लो, और उसके बाद फिर आप एक डायरेक्शन में लेके चलने की कोशिश करो, क्योंकि एनर्जी खत्म होती है, ठीक है। पीपल हैव लिमिटेड एनर्जी, यू हैव टू बी इफेक्टिव एंड प्रिसाइज, यू अंडरस्टैंड। सर मैसेज किया था आपने देखा नहीं ना, नेहा मैम ने बोला आपको इन्फॉर्म करें। अरे अरे यार शौकत भाई, पर्सनल पे मैसेज कर देना इंटरव्यू। हाँ कल से नहीं, वो 17 से ज्वाइन कर रहा है, सो अभी हमारे पेंडिंग मैसेजेस है ना, इसलिए हमने 2 दिन आगे कर दिया, ठीक है। बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो नो वरीज, यू गाइस कैन स्टिल ड्रॉप अ मैसेज, फाइन। साइलेंट फॉर, अब ये सारा सिस्टम ही ऑटोमेट करने वाले हैं हम, पता है कि, सो दैट ये सारी जो क्वेरीज है ना, ये एक ही बार में रिजॉल्व हो जाए। वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा, एंड एवरीथिंग अलोंग दोस लाइंस। लेक्चर का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी टॉकिंग अबाउट पीजीटी। लेक्चर का टॉपिक हम नहीं कर रहे थे, वी वर सपोज टू टॉक अबाउट पीजीटी, ठीक है। तो अगेन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एब्स्ट्रैक्शन, इसीलिए मैं जो, हाँ जी, so problem solving is about abstraction. If you are effectively able to break down the problem into smaller parts, that is all you need. एसएसबी में जाने से पहले ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करता था, एक बार प्रिंसिपल समझा दिया, मैं उनको ऑब्स्टिकल्स की फोटोज दे देता था, लगाओ दिमाग कैसे होगा। क्योंकि आपको वहां पे क्या करना है, पहुंच के ब्रेनस्टॉर्म करना है। आपको अगर रेडीमेड सोल्यूशन, अभी जैसे एसएसबी विंग्स की ऐप आ रखी है, ठीक है, उसमें क्या है, स्पून फीडिंग कर रहे हैं। सोल्यूशंस जो है, सोल्यूशंस वो ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर हाईलाइट होके, भाई उसका कोई पॉइंट है? मुझे नहीं लगता। अभिषेक 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सो अगर मैं एक प्रॉब्लम को 5 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाऊं, ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करना विल हेल्प मी मच मोर। सीकिंग आंसर्स, एक प्रॉब्लम पे मैं 10 मिनट 15 मिनट स्पेंड करूं और उसके बाद आंसर ढूंढूं, वो मेरे को याद रहेगा, रादर देन मेरे पास पहले से ही आंसर अवेलेबल है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एनालिसिस हो जाती है इस दौरान। क्यों होता है? ठीक है, रुक जाओ 1 सेकंड, होस्ट कंट्रोल्स खोलने दो। सर सेटिंग का कुछ करना पड़ेगा आपको। हाँ यार, वही देख रहा हूँ मैं। चलो ये हो गया, ठीक है, ओके सॉल्व नाउ। सो द पॉइंट इज हियर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बात रहती है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग में और किस टाइप के इम्पेडिमेंट्स आते हैं? इम्पेडिमेंट्स होते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक, मेरे को नहीं आएगा, ठीक है, मुझे नहीं आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो नेगेटिव, हम पहले ही सॉल्व या ट्राई करने से पहले वी हैव फियर ऑफ बिकमिंग द फूल, एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू लर्न यू विल अंडरस्टैंड दैट। आप कनिष्क कटारिया का एक बार इंटरव्यू देखना, ठीक है, रुक जाओ अभी डाउट्स नहीं, अभी पहले मेरी बात सुन लो, है ना। आप अगर कनिष्क कटारिया, ही इज ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2019, फाइन, सिविल सर्विसेज का। दैट गाई सेड कि व्हेन आई वाज गोइंग टू द कोचिंग, मैं भाई एक ही चीज दिमाग में लेके गया था, नो मैटर हाउ स्टूपिड ऑफ अ डाउट आई हैव, या कोई मेरे को स्टूपिड भी समझे तो आई विल आस्क द क्वेश्चन। So before becoming the hero, before becoming the savior, everyone has to start
from being a fool. Before any person becomes a savior, he has to be the fool. इसीलिए डाउट्स पूछना, सवाल पूछना इज नॉट अ बैड थिंग. अगर आपको नहीं समझ में आया आप पूछो. GTO इज ऑलवेज ओपन टू दिस. ठीक है, एक्सेप्ट जब टेस्ट चल रहा है. टेस्ट के दौरान नहीं पूछना, जाहिर सी बात है. लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, कोई बात नहीं, बताएगा. लेकिन टेस्ट एक बार चालू हो गया तो फिर ये चीज़ नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? यू हैव टू बी ओके विद बीइंग अ फूल. व्हाई? बिकॉज यू वांट, यू नो दैट यूर नॉट. फौज में जाने, यार SSB में कोई बंदा जा रहा है ना, परफेक्शनिज्म लेके जा रहा है, माई फ्रेंड्स, दे आर इन फॉर अ डिजास्टर. परफेक्ट, nobody is perfect, my friends. And perfect people tend to strangle themselves on even the smallest of mistakes. ठीक है, you have to have a resilient mindset. ठीक है, गलती करेगा पर आगे बढ़ेगा. फाइन. सेम गलती दोबारा नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सेम गलती दोबारा कर दी आपने, कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, सेम गलती रिपीट मत करो. ओके, लर्न फ्रॉम इट. फाइन, एंड आगे बढ़ो. ये जो है ना, आप अगर इतनी सी बात समझ गए. दूसरी चीज, आपको अगर ये समझ में आ गया कि यार लीड करना है, आई हैव टू एटलीस्ट बी एट द फोर फ्रंट, आई नीड टू गेट द एक्सपीरियंस. आप आगे जाओगे. आगे जाओ, भले ही नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, एक बंदे को अगर आइडिया आ रहा है, मान लो मेरे को ग्रुप में समझ में आ गया, दिस गाय हैज गुड आइडियाज, मैं आगे जा ही रहा हूं उसको असिस्ट करने. That is also okay and acceptable. Fine, because provided I have sufficient exposure, उसके बाद मेरे को ideas आने लगेंगे. There is a gestation period, my friends. But without that exposure, you will never be able to learn. So it's okay. ठीक है, मैंने अपने जितने, देखो मैंने 5 कॉन्फ्रेंस देखी थी, 10 अटेम्प्ट में मैंने 5 कॉन्फ्रेंस देखी. ठीक है, 2 या 3 कॉन्फ्रेंस के बाद जाके जो है मेरा गेम GTO का ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर सेकंड से पहले, मतलब विद इन सेकंड वी यूज्ड टू सॉल्व. बैंगलोर में जब मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में गया था ना, तो देयर वर वी वर 2 गाइज हु वर कैरिंग द एंटायर ग्रुप. पूरा ग्रुप पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता था, अभी दिमाग लगा रहा होता. इतने में आइडिया हमारा खटखट आगे एग्जीक्यूट हुआ, और पता नहीं वो बंदा भी सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, मेंटल लेवल पे. आई थिंक उसको भी उतना ही एक्सपीरियंस था. मैं बोलता था यार वो करके वो लगाते, और उसको समझ में आ गया. ठीक है, क्या करके क्या लगाना है. आप समझ रहे हो? सो आई मीन देयर वाज अ दिस थिंग. सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? ठीक है, देखो थोड़ी बहुत तो अपनी भी तारीफ कर रहा हूँ मैं, है ना, बट आ कहाँ से रहा है वो? बिकॉज आई वॉज विलिंग टू टेक अ रिस्क. आगे गए बिना ना सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, सबसे पहले तो ये हेजिटेशन निकालना है दिमाग से. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, है ना. उसके बाद देखो, आज हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, आई नो, बट रियल सोल्यूशन इज, मैं एक फाइल है PGD ऑब्स्टिकल्स करके, वो अपलोड कर दूंगा. आप लोग उससे गो थ्रू करो. मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट जो रेकमेंड हुआ था, उसने कंपाइल कर रखी थी. मोर देन द सोल्यूशन, इट इज अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द सोल्यूशन. ठीक है, आप वो स्ट्रक्चर्स पे टाइम स्पेंड करो, कैसे सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, राइट. एंड उसके बाद आप थोड़ी देर दिमाग, भले ही सोल्यूशन आपके पास ना आए, थोड़ा दिमाग एक्टिव हो गया ना, उसके बाद आप वीडियो भी देख लोगे ना यूट्यूब पे, दिमाग चलेगा, समझ में आएगा, अरे ओ ऐसा होता था, ओ. You understand? But most of us, what mistake we commit, directly we jump to the videos and we try to find solutions. ऐसे नहीं मिलेगा. जब तक आप ढूंढोगे नहीं उस सवाल को, उस जवाब को, तब तक मिलने के चांसेस भी नहीं रहेंगे. ठीक है, वही वाली बात होती है कि जिसको प्यास लगी होती है वो तो कुआं भी खोद देता है. सॉरी, दैट वाज बैटरी अलार्म. फाइन. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. तो ये 2 चीजें जो हैं, तो हम एक बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि आप लोगों को अभी तक मैंने क्या अप्रोच समझाई है. बेसिकली जीडी में इम्परफेक्शन चलेगा. ठीक है, नॉलेज नहीं है ना तब भी चलेगा.
एटीट्यूड, करेक्ट एटीट्यूड के बिना आप सिलेक्ट नहीं होंगे। पर सेम चीज़ इज एप्लीकेबल फॉर पीजीटी ऑल्सो, ठीक है। अगर आप नॉन कोऑपरेशन डिस्प्ले कर रहे हो कि अब मैं आगे बढ़ गया, आगे पहुंच गया, अब कभी मेरे को मौका ही नहीं मिलेगा, मैं यहीं पे रह लेता हूँ, घर बना लेता हूँ, वो भी गलत है। हाँ, स्मार्ट बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली इट डज यार ब्रो, कम ऑन। अब वो क्या इम्प्लीकेशन, कैसे इम्प्लीकेशन, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े नंबर कट जाएंगे आपके, यस डेफिनेटली। एंड सामने वाला बंदा आपको अंडर कॉन्फिडेंट परसीव करेगा, सो इम्प्रेशंस की बात होती है। बट आपका कंटेंट सही है तब भी आप सिलेक्ट हो गए। ऐसा वो नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ कंप्लीट बेसिस फॉर रिजेक्शन, नो। एनीवे, सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, व्हाट वाज आई सेइंग, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना है। तो ऑप्शंस अगर आपके पास क्या क्या हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एनी आइडियाज, देन व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, आई विल टेल यू, ठीक है। एक, assist others, try and understand their idea and assist them, क्योंकि वो आइडियाज आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले, माय फ्रेंड्स, मेरे को याद है, ठीक है। गो आउट देयर, असिस्ट अदर्स, दैट इज ओके, फाइन। दूसरों के आइडियाज सुनो, पॉइंट नंबर 2, दूसरों के आइडियाज सुनो, ट्राई टू एग्जीक्यूट देम, ठीक है। इफ नन ऑफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट, कीप ट्राइंग, कीप गिविंग पार्शियल आइडियाज, दैट इज ओके, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट। आपका आधा आइडिया दिया, किसी और ने आधा आइडिया लगाया, मिलके एक पूरा आइडिया बन जाता है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता था एंड लेट मी टेल यू, इट माइट साउंड स्टूपिड, डिस्क्लेमर अलर्ट, फाइन। बट जब मेरी से ना स्टोरी समझना, पहले मैंने कोचिंग पूरी नहीं करी थी अपनी, ठीक है, तो मेरे को पता नहीं था क्या करना होता है। पीजीटी में पहुंचे ना, तो पहले वाले में मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैंने सोचा यार मैं टीम वाला बंदा हूँ, टीम ओरिएंटेड बंदा हूँ, सेकंड थर्ड से मैं इनको करने दूंगा, है ना। तो मैं आगे तो रहता था, मैं रस्सी वस्सी बांधने के, रस्सी सही से बांधने आती थी मेरे को, ठीक है। मस्त जिम में जाके जान जान वो कर रखी थी, ठीक है। जिम तो खैर नहीं जाता था, पर बास्केटबॉल खेलता था, ठीक है। मस्त तो रस्सी बांधने में बहुत काम आता था, ठीक है। तो मैं आगे रह के कॉन्ट्रीब्यूट करता था, फाइन। जब ब्रिज बन गया एक बार, तो फिर उसके बाद मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं काम कर रहा हूँ ना, तो वॉलंटियर फॉर क्रॉसिंग द ब्रिज, ठीक है। वाई? बिकॉज वी हैव टू शो एक्टिव पार्टिसिपेशन, सिंपल। एक अगर मंत्र आपको याद रखना है तो ये याद रखना, व्हेन यू गो टू जीटीओ, बी द ड्राइवर, डोंट बी द पैसेंजर, डोंट बी द पैसेंजर। पैसेंजर इज देयर जस्ट टू ऑब्जर्व, ठीक है। ड्राइवर इज देयर टू कंट्रीब्यूट, फाइन। जस्ट डोंट बी द पैसेंजर, डू व्हाटएवर, ठीक है। कंडक्टर बन जाओ, कोई बात नहीं, बात समझ आ रही है, पैसेंजर मत बनना बस, ठीक है। डोंट बी अ पैसिव पार्टिसिपेंट ऑफ द एंटायर, यस एग्जैक्टली, एक्टिव एंड परसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो these are the kind of problems that I've seen people make, right? So now we'll just take up, we have around 12 minutes, ठीक है। So we'll take up doubts and we'll try to do justice. Yes, अब पूछ लो, हाथ रेज करो, and then let's go in order. हाँ यार अभिषेक बोलो, नहीं विजय पूछो, विजय go ahead. Sir, I have doubt regarding. हाँ I have doubt regarding the GD. For example, as I said, sir, we have to divide the group in 3 parts. Like for someone, he is not able to put his point, so we have to give his chance. For example, that victim we are. So how can we tackle that? For example, someone is promoting us to speak in the group. हाँ यार वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए ना भाई, देन यू नीड मोर प्रैक्टिस, सिंपली। देन you're not exposed sufficiently to participating in a GD. You cannot fend your own, ठीक है। आप इतने केपेबल होने चाहिए, आपको किसी और को चांस देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस लो, फाइन, ओके। अभिषेक has asked, in first 5 minutes how to judge the group dynamics
एंड इफ आ जाता है यार इतना भाई 2 मिनट भी ग्रुप के साथ ना बहुत होता है. एंड इफ ग्रुप इज गोइंग ऑफ टॉपिक इज इट ओके टू ब्रिंग इट बैक एज इट माइट क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट और जस्ट गो विद द ग्रुप. नहीं नहीं यार देखो अच्छी बात है, इंस्ट्रक्शंस हमेशा याद दिला दो, ठीक है. दैट दिस वाज the topic of discussion. Let us try to keep our points limited to topic of discussion, ठीक है. पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. फाइन, यू डोंट नीड टू शाउट एट देम कि अब कहाँ जा रहे हो बेवकूफ़ो, है ना, वैसा वाला अप्रोच नहीं, ठीक है. पॉजिटिव पार्टिसिपेशन. हाउ मेनी टाइम्स शैल आई स्पीक इन अ जीडी. यार ये अगर मैंने बता दिया ना तो मैं भी फिर वही कोचिंग वाला बन जाऊंगा, ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स आई शुड स्पीक इन द जीडी, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ विच एवर नंबर यू फाइंड कंफर्टेबल. बिकॉज ग्रुप गोल अचीव करना है. ग्रुप गोल क्या है? टू डिस्कस ऑल लीड्स इन अ हेल्दी मैनर. अब उसके लिए मेरे को जो करना पड़े मैं करूँगा, ठीक है. बट जनरली क्या होता है ना, अब मैं एक स्टार्टिंग में बोला 5 मिनट तक, फिर मैं बोला ही नहीं, सब भूल जाएंगे जीडी में. मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में एक बार एक छोटा सा पॉइंट रख देना है, ठीक है. समझ रहे हो? जनरली इट इज अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ आई चूज कि यार इस बंदे का पॉइंट अच्छा है ना, लेट्स लिसन टू व्हाट ही हैज टू से. फाइन. और उसमें मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट भी रख दूं मिला के. बात समझ आ रही है? देयर इज नो लिमिटेड नंबर कि इतनी बार कंट्रीब्यूट करना है. आर देयर मोर ग्रुप डायनामिक्स? नहीं यार, ग्रुप डायनामिक्स तो यही है ना, और क्या है. पावर प्ले है. पावर प्ले, किसके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है. अच्छा, जो देखो एक चीज़ लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि दोबारा हाथ नीचे करके रेस करेंगे तो ज़्यादा टेंशन जाएगा, ठीक है. होता क्या है ना, यू गो एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, ठीक है. मैं ऑर्डर में चलता हूँ लिस्ट में. फाइन. ओके. यस मयूरी. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, during lecture 8, sometimes I do not have the content. So I try to speak within the allotted time. Whatever I know, I try to exaggerate or give examples. हाँ. But my content is limited. Sir, will it be a problem? Like, वही गेम है यार, तू समझ रही है. लेक्चरेट इज नथिंग बट 4 पॉइंट्स, दैट्स इट. okay, sir. लेक्चरेट इज नथिंग बट 4 पॉइंट्स, ठीक है. एक पॉइंट ऑन एक मेरे को हमेशा ओपनिंग तो फिक्स रहेगा मेरा मोर और लेस, ठीक है. फिर उसके बाद एक हिस्ट्री होगा टॉपिक का जनरली. फाइन. व्हाट इज द करंट सिचुएशन एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम, ठीक है. मेरे को तीनों के अंडर एक एक पॉइंट रखना है, एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट. Okay, sir. So last time my topic was underemployment, and there, sir, I spoke about unemployment. अर्निंग. Sir, I spoke about unemployment, and my topic was underemployment. अच्छा, ओके. तो ठीक है यार, अंडर एम्प्लॉयमेंट अब चलेगा. स्ट्रक्चरिंग मैटर्स मोर. आप टॉपिक को अप्रोच कैसे कर रहे हो, ठीक है. मोर देन द एसे इटसेल्फ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट हाउ सेंसिबल इट इज, राइट. तो कनेक्टेड ही तो है ही ना टॉपिक्स. थोड़े बहुत 19-20 नंबर काटेगा, मतलब 19-20 करेगा, ठीक है. बट अगर आपने डिलीवर अच्छे से करा है तो यू विल गेट मार्क्स, Okay, sir. ठीक है. यस अतुल. अच्छा रुक जाओ, नॉट अतुल, शशिकांत. यस शशिकांत. नहीं है क्वेश्चन? अच्छा ठीक है भाई. ज्योति. सर जैसे जीडी में लीड्स दिए होते हैं काफी सारे. अब एक हर टॉपिक ऐसा होता है कि काफी स्ट्रांग होता है, तो उसमें लीड्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ इसमें बोलना है, नहीं इसमें नहीं बोलना. बट समटाइम्स द टॉपिक इज सो कॉमन कि हमें ऐसा होता है कि एक जो लीड पे बोल रहा है, हाँ. हमारी भी पॉइंट उसी लीड को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होती वेरी है नाइस. समहाउ. देखो सो हाँ, समझ उस गया पॉइंट पे क्या करें? मैं समझ गया. देखो क्या है ना, 2 टाइप के टॉपिक होते हैं, ठीक है. एक होता है टॉपिक पॉजिटिव टॉपिक, ठीक है. व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, पॉलिटी या फिर सिक्योरिटी, ठीक है. अब तीनों चीजें होंगी. फाइन. एक टॉपिक होता है नेगेटिव टॉपिक. वो क्या पूछेगा? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है. पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर सिक्योरिटी, ठीक है. एक पूछ रहा है पॉजिटिव सेंस में, एक दूसरा टॉपिक जो है वो ठीकरा फोड़ रहा है.
इस पे, ठीक है, किसी एक टॉपिक, किसी एक लीड पे। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। बट इन एनी केस मैं कभी भी किसी के भी पॉइंट को सपोर्ट भी कर सकता हूँ पूरे ग्रुप में, ठीक है। मैं जनरली क्या, व्हाट यूज्ड टू बी माय अप्रोच, कि मैं एक लीड ऐसी पकड़ूंगा। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में दो तीन मिनट हमेशा लेता था। एक लीड ऐसी पकड़ूंगा जिसमें दोनों बाकी कवर हो जाए, ठीक है। माय कांस्टेंट फाइट वुड बी टू फाइंड दैट वन लीड विच कैन कवर द अदर टू, ठीक है, ताकि मैं बाकी लोगों को भी अग्रीमेंट दे पाऊं, है ना, समझ रहे हो। बट एट द एंड मैं बोलूंगा आई अग्री विद यू ज्योति, बट आई थिंक द नीड ऑफ द आवर इज, मेरी वाली लीड की बात कर दूंगा, राइट। ओके सर, बट जैसे आपने बोला कि आप 2-3 मिनट बाद आते हो ऐसा, पर कभी कभी ऐसे ग्रुप का ऐसे चल रहा होता है कि अच्छी ग्रुप मिल जाती है कभी कभी, तो हम लोग थोड़ा ग्रुप में पार्टिसिपेशन में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि यस आई डू सपोर्ट दिस पॉइंट और दिस लीड, एंड उसके आगे रीजन अपना जो भी होता है। अब एक बार सपोर्ट कर चुके हैं सर, तो फिर अभी आगे हम चेंज नहीं कर सकते ना उसे, उस पॉइंट पे फिर क्या करेंगे? अरे तो क्यों बोल रहे हैं स्टार्टिंग में ही खामखा, है ना। यस आई एग्री विद यू, ये बोलना कितना जरूरी है। जब तक मैं नहीं रेडी है। नहीं हूँ अपने फॉलो अप पॉइंट के साथ, तब तक ये बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बिफोर आई गिव अग्रीमेंट टू एनीवन आई शुड हैव अ फॉलो अप पॉइंट रेडी, ठीक है। ओके हाँ, अभिषेक कुछ पूछ रहा है, क्या कह रहा है? लीड से बाहर ऑप्शंस ले सकते हैं? नहीं यार, यूजुअली नहीं, ठीक है। स्टिक टू द लीड्स, बाकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है। अगर जीटीओ बोल रहा है कि आप एनी अदर ऑप्शन, अगर वो होता एनीथिंग एल्स इन द सेंस कि कई बार तीसरी लीड दी जाती है, एनी अदर फैक्टर दैट यू माइट फाइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट, इन दैट केस फाइन। मुदत यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। डिसाइड करना ज़रूरी है ना इन जीडी की विच साइड टू स्पीक। यार ये ना देखो, हाँ, ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग है कि टाइम लेना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। टाइम लेके एक डिसीजन पे आ जाओ, राइट, सोच समझ के, और फिर ज़्यादा डिविएट मत करो उससे, अग्रीमेंट भी दो बाकियों को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस। एक एक करके यार, यूजुअली रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कई बार किसी और दोस्त बनाने के लिए अपनी टीम में, आई कैन स्पीक ऑन सपोर्ट सम अदर लीड्स, बट एंड में मेरे को क्या एंड करना है, बट हाउ एवर आई थिंक दिस इज माई लीड इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा प्रेसिंग कंसर्न ये है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे को लगता भी वही है, फाइन। दिस वन मोमेंट, yes, we have next question is Atul Mishra. Yes, sir. I was asking, is it a good time to put your point in GD when 2 or 3 other persons are already contending to put their point and speaking simultaneously? Not really. ठीक है, देखो, अगर 2-3 बंदे बोल रहे हैं, आई विल होल्ड ऑफ, ठीक है। उनके पॉइंट्स को पहले अग्रीमेंट दूंगा, मैं अपने दोस्त बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं पॉइंट रखूंगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी और 3 बंदे और बोल पड़े, राइट, सो इन दैट केस आई कैन से कि यार जेंटलमैन जस्ट लेट मी कंप्लीट द पॉइंट, फाइन, आप फिर बोल लेना। लेकिन इसका भी जरूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि, हाँ बोलो। बट दे वॉन्ट लिसन सर। अगर आप वो बोल रहे हैं और आप अपना पॉइंट दे रहे हैं कि आई एग्री विथ यू बट आई वांट टू पॉइंट, फिर भी वो कंसिडर नहीं करेंगे आपका बात, और आप यही बोल रहे हैं कि जेंटलमैन लेट मी कंप्लीट, तब भी वो बोलेंगे। तो भाई बोलेंगे तो फिर वो तो खुद ही अपनी वो कर रहे हैं ना। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट बी पेशेंट। बदतमीजी वो कर रहे हैं, तो क्या मैं भी बदतमीज बन जाऊं? नहीं ना, मेरे को इफेक्टिव तरीका ढूंढना है पार्टिसिपेशन का, ठीक है। आई नीड टू गिव माय पॉइंट्स मोर इफेक्टिवली, दैट्स इट।
हाँ बिल्कुल, वो खुद ही कर रहे हैं, करने दो फिर, मचा रहे तो मचाने दो। हाँ, ठीक है। यस, नेक्स्ट वी हैव शशिकांत। Sir, I have two questions. The first one is that during the PPDT, whether what we should have to speak, whether we should go with our own story or something else. And the second one is during uh, GD, during GD, when we have to speak, uh, we have to start with the मतलब starting से start करना चाहिए और we have contribute in the main part of the GD. सेकंड वाला मैं समझा नहीं क्वेश्चन तेरा। सर फर्स्ट वाले बता दीजिए पहले। देखो यार, नरेशन में तो आपने अपना पॉइंट रख दिया ना स्टोरी, ठीक है। अगर मेरी स्टोरी एक्सेप्शनल होती तो जीडी स्टार्ट होते ही सारे बंदे मेरी स्टोरी को बोलते ही ग्रुप स्टोरी बना दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आई डोंट हैव द बेस्ट स्टोरी, ठीक है। विच मीन्स आई नीड अदर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जनरली क्या है ना, देखो जब सब सेल्फिश हो रहे हैं, सब अपनी अपनी स्टोरी पुश कर रहे हैं, यू कैन स्टैंड आउट बाय रूटिंग फॉर अदर्स, ठीक है। जिसकी एक्चुअली अच्छी है स्टोरी, उसके लिए आप गो फॉर दैट ना। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, समझ रहे हो। इलेक्शन में कौन बंदा जीतना चाहिए? वो जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, करेक्ट है ना। अब वही कोई बोलेगा अरे मोदी जी या फिर कांग्रेस, तो भाई उसकी तो सेट है ना फिर एलिजेंस। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी अच्छा करे या खराब करे, कांग्रेस अच्छा करे या खराब करे, वो क्या किस हिसाब से चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लॉयल्टी, मेरिटोक्रेसी, फाइन। Sir, I also want to know that in the lecture whether we have to use only the facts or we can go with the easy language, like Easy we should use the tough words or we देख can go जैसे with क्या the होता है, easy language. हम क्या करते थे, कभी आपने लॉन्ग आंसर्स क्लास में लिखे होंगे एग्जाम्स में। क्या करते थे, एक पॉइंट लिखते थे, उसका एक्सप्लेनेशन देते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा, फिर एक्सप्लेनेशन दिया, उसी तरीके से चलना होता है, ठीक है। तो फैक्ट्स भी होंगे, एक्सप्लेनेशंस भी होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी दिक्कत देंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी दिक्कत देगा, है ना। कुछ लोग गाने लिख के आ जाते थे, है ना, वो भी नहीं करना, फाइन। चलो लास्ट फ्यू डाउट्स गाइस, लास्ट 2 डाउट्स आई एम टेकिंग अप बिकॉज आई हैव अनदर क्लास, ठीक है। वैसे ही हम ओवर टाइम में चल रहे हैं। ये सिंधु। Yes, sir. So my doubt was regarding choosing the leads. Like, is it really wise to choose one and link the rest, or like we have to, like if the group is following general like one by one, like and building upon each leads. यार वो So डिपेंड करता है। ग्रुप अगर काफ़ी इंटेलिजेंट है तो फिर मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 लीड्स, फाइन। बट अगर ठीक है ग्रुप की बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉवस नहीं है, देन आई कैन गो विद इट, okay, sir, got it. है ना। अब वो देखना पड़ेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। भाई इसका मेरे को नहीं पता यार, उसका क्या करोगे जानने का, है ना। 170 नंबर भाई, मैं कहाँ से बताऊँ। एनीवे, शौकत, यस। सर मुझे ये पूछना था, अभी मान लो जीडी का टॉपिक ये है कि लॉकडाउन में किसको ज्यादा अफेक्ट हुआ, स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट्स। अभी हमको तीनों में से एक ही को लेके बोलना है या तीनों को इंक्लूड करके बोल सकते हैं? यार तीनों को ही लेके बोल सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या है वो इम्पैक्ट करेगा। अगर देख यहीं पे मैं अगर बोलूँ कि देखो 3 चीज़ें हैं कि पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर द फैमिली, तो उनके सर्वाइवल पे अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूरी फैमिली पे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, तो अगर इनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है। टीचर्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे
शेप द यंगर जनरेशन। अब वो मेरे ऊपर है, ठीक है। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो इम्पोर्टेंस जो है ना, सिग्निफिकेंस हाईलाइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है, पता है, ठीक है, बट द लॉजिक बिहाइंड व्हाई आई चोज द टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट। फाइन, वो मेरे को रखना सर है अगर और बाकियों का भी एक्सेप्ट अगर करना है। हाँ सर अगर मैंने पेरेंट्स के ऊपर बोलना चालू किया और मान लो किसी ने टीचर का बोला, फिर तो मुझे उसका पॉइंट सही लगा, तो हाँ, उसके बाद वो टीचर का भी और ऐड ऑन कर सकते हैं, और मुझे पेरेंट्स का ही कंटिन्यू करना है। ऐड ऑन कर दे, बाद लास्ट में अपना पॉइंट रीइटरेट कर दे, हाँ सर। ठीक है, इट्स ओके। ते वो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई ये बंदा ओपिनियन स्विच नहीं कर रहा बार बार। आपने उसको अग्रीमेंट भी दे दिया, इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट, बट जस्ट एंड अप कि हाउएवर आई स्टिल फील दैट पेरेंट्स वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात पे ख़त्म कर दो, दैट्स इट, ठीक है। यस, वी आर टेकिंग लास्ट 2 डाउट्स। आई थिंक उमा और शेख आमिर एंड उमा, इन दोनों को डाउट्स हैं, ठीक है। सो लेके अपन ख़त्म करते हैं। यस शेख आमिर। Hello, Jain sir. Am I audible? जय हिंद, या यू आर। Sir, I wanted to ask a doubt regarding the preparation for GD and lecturate. So it's generally seen कि बहुत सारे candidates and even सब लोग बोलते हैं कि newspaper is considered the best way to prepare. So sir, I just wanted to ask कि apart from like I read the Indian Express newspaper every day. So I just wanted to ask कि apart from one newspaper, is there anything additional that's required? नॉट रियली ब्रो, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, 2 से 3 महीने पढ़ो, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा सफिशिएंट तरीके से, ठीक है। 1 न्यूज़पेपर इज़ मोर देन सफिशिएंट, फाइन। अब कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए अपने को, उसके लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कुछ कोर्स सोर्सेज क्या करते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री रीडिंग अच्छी करा देते हैं। न्यूज़पेपर में मान लो अगर डिमोनेटाइजेशन या रेपो रेट वाला टॉपिक टच करा, और वो बेसिक्स कवर नहीं करेंगे, तो आपको बस ये सोर्सेज ढूंढने हैं जो मेरे को रेपो रेट का बेसिक समझने में हेल्प करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज Okay, sir. ऑल दैट यू नीड टू रीड एडिशनली, दैट्स इट। Okay. Thank you so much, sir. श्योर, यस उमा। Sir, in group discussion, the first person and the last person are mostly ignored. So, how to put a ऐसा नहीं है, point in ऐसा the नहीं है, discussion? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। मैं आई हैव बीन ऑन द फर्स्ट आल्सो, लास्ट वाला भी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लाउड इनफ, ठीक है। यू जस्ट बी लाउड इनफ Yes. एंड, है ना, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, बस थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा, स्लाइटली लाउडर, ठीक है। Okay, sir. That's So, it. one more doubt. So, what is the strategy for screening process? यार इसके लिए ना देख, मैं आई डोंट डू टिप्स टू बी ऑनेस्ट, राइट। स्ट्रैटेजी फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस यही है, बेसिक्स जो थी आज जो हमने जीडी में कवर करी यही है मोस्टली, ठीक है। बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस विल बी देयर, एंड इफ यू वांट टू नो मोर, कम टू द स्क्रीनिंग बैच व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन 17th, ठीक है, पूरा, Thank you, sir. है ना। सो वी हैव 14 hours dedicated to screening only, right? So there you'll get a very brief idea, because I don't do half cock things, right? मैं एक बात पकड़ूंगा, उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, ताकि एटलीस्ट यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। चलिए, सो ऑन दैट नोट गाइज,